डांस के रणदीप हुडा है नहीं हमारे साथ, पर यूपी नवाब्स सलीम-सुलेमान, दिल्ली हीरो अर्जुन रामपाल, मुंबई मैनियक्स अजय देवगन. Let's do a fight pose, guys. Let's do a fight pose. Ayo bhai. All right, ladies and gentlemen, before we go ahead with this Q&A, Ajay, you've been a sports enthusiast. I was talking to you just before this event. You have truly believed in the potential of MMA. Have you followed the sport very closely? What is it that you like about this sport? I love the sport because, some way or the other, I've always been connected to action and, such things. So I've trained in a lot of things myself earlier. It's fun, it's exciting, and it's very challenging. You sit there and you have this adrenaline rush. That's why I wanted to be a part of this. And after we saw how it happens in the US and everywhere, and India is a country where, I think any sport, like I would say wrestling is a base of this also. So we have people here, so why not start here also? Sport that I wish I was in the cage with these guys as well and fighting it out. Have you ever had that feeling? Yeah, in the movies. But definitely not in real life. I don't think so. Because it's caged. You can't get out of there. Once you're in there, you're in there. And I think, it takes a lot of guts to go in there. And whatever it is, it looks really violent, but at the end of the day, these guys are physically so fit. They're incredible athletes. It's a sport. And it gives a huge amount of rush to the audience that goes to watch there, because we can't do it. It takes a special kind to go out there and be able to do that sport. And I think that's what makes them so unique, so special. And MMA having so many different techniques of fighting coming together, I think is that supreme athlete, and that's why it's going absolutely ballistic all over the world. Connect, but I want to really hear this. Musicians who sing, dance, compose, now into the cage. It's the diaspora of people that actually watch MMA. It's also the same kind of people that listen to our music. We make music which is very energetic, very for the youth. And that's the kind of diaspora that actually watches this. So what better way to connect with the youth than through the sport? And it's a very, very interesting sport. It's growing rapidly. And we want to be where the action is, right in the middle of it. Yeah, this thing in technique, and both me and Sulaiman, we were following it for a while, and when we saw a few matches, I was like, yes, it's back, and it's in India, and I know this was going to start a couple of years ago, but it didn't at that point, and actually I'm very happy that it didn't, because now that we are part of it, we feel even more connected. So thank you for having us, Bill. Would we also hear a track being composed for the league? But soon. Hopefully soon. For sure. It's a do it for our team. Of course. Yeah. So you got deals happening here, right, man? Deals negotiated here. All right, ladies and gentlemen, we're going to open it आप लोगों के साथ for the Q&A. A small humble request, please, and sports. All right? So just raise your hand. Our volunteers will move. और आप सवाल पूछ सकते हैं, but like I said earlier, the super fight. Thank you. कौन सवाल पूछना चाहेंगे? There, the gentleman there in the second row. My name is Ravi Kumar from News Helpline. मेरा सवाल अजय सर और अर्जुन सर आप दोनों से है. आपकी डेली रूटीन में MMA को आप कितनी अहमियत देते हैं? Actually, I box, but not that regularly. But to keep your cardio going, you need to box. I'm sure the MMA guys are a lot into stamina, and my training is a lot functional as well. So because it is about core and it's more about stamina rather than just bulking up and having big muscle. I think it's important is the quality of the muscle. So I try my best, but obviously nowhere close to them. मगर अब मैं इनके साथ जुड़ गया हूँ तो hopefully ये मुझे कुछ और सिखाएंगे और मेरी fitness level एक दूसरे level तक ले जाएंगे. Ajay sir. I
थिंक जैसा अर्जुन ने कहा कि फिट रहने के लिए इसका मतलब सिर्फ वेट ट्रेनिंग नहीं होता। बचपन से हम कुछ ना कुछ करते आए हैं, कुछ ना कुछ सीखते आए हैं, और हमारा काम जो है वो हमको बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल एंड डू द स्टंट्स वी डू इन फिल्म्स, ऑब्वियसली अगेन नॉट लाइक देम। So yeah, like he said, now I would also like to go and train with these guys. और दूसरा सवाल ये भी है कि सिनेमा के पर्दे पर मार्शल आर्ट्स में काफ़ी सारे आर्ट्स आ जाते हैं, और जो हमारे सिनेमा में है, आई मीन कुछ तो बहुत ही मैं कहूँगा कि नकली किस्म की फाइटें होती हैं, कुछ आजकल काफ़ी हम रियलिस्टिक जाने की कोशिश करते हैं। जो कोरियोग्राफर्स हैं एक्शन के, हम आजकल उनको हायर कर रहे हैं जो रियली ट्रेंड हो टू मेक इट वेरी रियल। सो आई थिंक उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अब अजय सर यहाँ पे अश्विनी थी मेरी दूसरी फिल्म थी जिगर, आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट मार्शल आर्ट्स ऑल्सो। और जैसा कि बट आई मीन दैट्स द आंसर एक्चुअली, कि फिल्में ज़रूर ऐसी करना चाहूँगा, और ऐसी फिल्में मैं करता आया हूँ बेसिकली। और ऐसे स्पोर्ट को आगे लेके जाना, बिकॉज हम सब ऊपर बैठ के कुछ वीडियोस देख रहे थे अब, एंड वी वर बीइंग शॉक्ड, यार इतना खून निकलता है, लोगों का रिएक्शन, हमारा डिस्कशन ये सब चल रहा था। सो इट्स स्कैरी, इट्स एक्साइटिंग, एंड यू रियली नीड द गट्स टू बी इन दैट केज गाइस। अब बादशाहों में कितना स्टंट्स होने वाला है, बिकॉज यू आर आजकल का दौर ऐसे चल रहा है कि गोलियों बंदूक का ज़माना चल रहा है। मार्शल आर्ट्स क्या फ़ायदा कर सकती है? अर्जुन रामपाल भी बताना चाहे बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। आई थिंक गोलियों का ज़माना चल रहा है वो अलग बात है। मार्शल आर्ट्स को एज एग्रेशन नहीं, एज ए स्पोर्ट अगर आप देखें तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका फिज़िकली फिट रहने का, और बाकी और तरीके भी हैं, बट विद स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, आई थिंक ये सबसे बेस्ट तरीका है। और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है आपको। आई एम श्योर अर्जुन विल एग्री विद मी। हमारे भी फेज आते हैं कि हम वर्कआउट्स कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, एंड देयर आर डेज, देयर आर वीक्स जब हम नहीं करते, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मेंटली अब बहुत लो हो जाता है। तो अगर आप साइंटिफिकली भी देखें, जो ब्लड का रश होता है, एंड जो आई एम सेइंग द बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, आई थिंक वो सब चीज़ों में मदद करता है। तो इट्स इन अ वे टू बी वेरी फिट। अजय सर, मेरा सवाल आपसे है, बहुत सारा एक्शन हो रहा था, तो ऐसा कभी हुआ कि आपको मैसिव, मतलब बहुत ज़्यादा चोट लग गई हो एक्शन करने के टाइम? ऐसी कोई मेमोरी है जो आप शेयर करना जी बिल्कुल। आई थिंक हम सब ने काफ़ी हड्डियाँ तोड़ी अपनी ज़िंदगी में, और अब हमारी फिल्मों में एक्शन थोड़ा आसान हो गया, बिकॉज केबल्स आ गए हैं और काफ़ी कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि लोग बहुत कुछ कर पाते हैं। बट जब हमने शुरू किया था, तो अगर वो चौथे माले से कूदना होता तो नीचे वो बॉक्सेस लगा देते थे और हम कूदते थे। तो आई थिंक 10-12 हड्डियाँ मेरी बॉडी की टूटी हुई हैं। अर्जुन सर, हाल ही में आपको एक आँख पे चोट लगी थी, उसके बारे में बताइए कैसे ये हुआ था? हाँ, मैंने गलत आँख मार दी बस, और इसीलिए तो नहीं, एक्चुअली इट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वाज समथिंग व्हिच वाज एन इन्फेक्शन इन माय, तो आई हैड टू गेट इट ऑपरेटेड, बट आई एम फाइन नाउ, आई कैन सी। थैंक यू। म्यूज़िकली पहली बात तो हम इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है बड़ी शानदार होने वाली है। ओपनिंग सेरेमनी में हम परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके अलावा हम हमारी टीम का एंथम कर रहे हैं, और उसके अलावा हम हमारी टीम को सपोर्ट करेंगे। जी ये गलत बात है, बिकॉज आप म्यूजिक के मास्टर्स हैं, तो नहीं, आप अपनी टीम को सिर्फ सपोर्ट नहीं, करेंगे। आप हुक्म कीजिए, हम आपकी भी, हम सबकी टीम पहले आप हमारा गाना बनाइए ज़रूर। अजय साहब, मेरा सवाल आपसे है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सुपर फाइट लीग आके देखिए। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। फाइटिंग कंपटीशन होने वाला है, उसमें हम देखेंगे कि महिलाओं को भी फाइट करते हुए हमारे देश में कितना इम्पॉर्टेंट है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ताकि हम खुद को सेफ रख सके। हाल ही में मॉलेस्टेशन के केस आते रहे हैं, तो महिलाओं को कितना प्रेरणा मिलेगी इससे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये बहुत ही बड़ी स्टेप ली है SFL ने, कि एक लड़की को भी होना चाहिए इन द टीम, बिकॉज मार्शल आर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि हमने कहा, अगर आपने ट्रेनिंग ली, आपका स्किल आपने बढ़ाया, आपको पता है कि किस तरीके से मूव करना है, क्या करना है, यू कैन सी हाउ मच पावर यू कैन जनरेट एंड स्टिल बी फेमिनिन।
ये मतलब नहीं कि आप किसी बॉडी बिल्डर की तरह आपकी बॉडी बनने वाली है या आप कुछ अलग लगोगे, यू नो। और तो आई थिंक बीइंग फेमिनिन एंड बीइंग स्ट्रॉन्ग सेंड्स ग्रेट मैसेजेस टू द वुमेन ऑफ आवर कंट्री, और बहुत अच्छा लगेगा टू यू नो इनकरेज देम टू से कि देखो ऐसा हो सकता है। तो जो बदमाश बंदे हैं वो भी 10 बार सोचेंगे बिफोर टेकिंग अ पंगा विद एनीबॉडी। आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि थ्रू दिस लीग, थ्रू दिस टूर्नामेंट बहुत सारी महिलाओं को वो बढ़ावा मिलेगा। और हालांकि ये सिर्फ ये टूर्नामेंट तक ही नहीं है, इसका जो एक्सटेंशन है उसमें यहाँ पे हमारे जिम्स, हर सिटी में हर टीम के जिम्स होंगे और वो जिम्स में लोग आके ट्रेन करेंगे एमएमए के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज महिलाओं के लिए आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, ना केवल अपने आप को प्रोटेक्ट करना बट इट्स ऑल्सो फॉर देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उनका यू नो वो कॉन्फिडेंस बढ़े उसके लिए। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एक्चुअली। अजय सबसे ज़्यादा खुश मैं इसी बात पे हुआ था कि इस टूर्नामेंट में लड़कियां भी हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बात नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की बात है। और ये एक मिथ है कि यू नो लड़कियां मर्दों से कमज़ोर हैं। अगर उनका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो, अगर वो ऐसी चीज़ों में हिस्सा लें, तो आई थिंक दे कैन बी स्ट्रॉन्गर देन मैन। और अगर ये मैसेज जब वो देखेंगी टीवी पे लड़कियां लड़ते हुए, तो आई होप कि वो और ज़्यादा इंस्पायर हो और वो खुद भी कोई ना कोई स्पोर्ट या कुछ ना कुछ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, और उन्हें फिर डरने की कोई वजह ना हो। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू। ऑलराइट, ये नेवर स्टॉप फाइटिंग वाला टैग जो है, लाइन जो है, इज बीन गिवन फॉर अ रीजन। इट्स नॉट ओनली फॉर द फाइट दैट हैपेंस इन द केज, इट्स ऑल्सो फॉर द फाइट दैट हैपेंस इन रियल लाइफ। Never stop fighting against things that are wrong. Never stop fighting against for what you believe in. It's the sword symbolizes never stop fighting at this platform. So we're very inspired by each one of you. Give it up for the awesome fivesome, actually sixsome on stage. Thank you. अब दोस्तों